Next is y is equals to fx function given है, and we need to draw one y is equals to 1 by fx. This is y is equal to fx, and we need to draw y is equals to 1 by fx. Uh, 1 by fx means we need to take a reciprocal of each of these values of the graph. So suppose this value, maximum value is 1 and minimum value is -1. Suppose this point when x is equal to 0.1, the value of fx is 0.3. Then in this case, the y will take 1 by 0.3. When fx here is 0.5, then in this case, y will take 1 by 0.5. So this function will take the reciprocal of all the values of this graph. So everybody is clear is what we have to do here? Yes, sir. Okay. So whenever this function is 0, so 1 by 0 is not defined. Can anybody tell me what is the value of 1 by 0? Infinity. 1 by 0 is infinity? Yes, sir. 1 by 0 is not defined. 1 by 0 is not equal to infinity, is neither infinity, is not neither minus infinity. It's simply not defined. 1 by 0 is not defined. But once somebody asks you what is the value of 1 by 0 plus, that means now this number is slightly greater than 0, then it could be somewhere like 0.0000000001. Then in that case, it will approach to infinity. Then 1 by 0 plus will tends to infinity. And 1 by 0 minus, if I say the number is slightly less than 0, minus 0.0000000001, then it will approach to minus infinity. Then that means 1 by 0 plus, that means slightly, this number is slightly greater than 0, will approach to infinity. 1 by 0 minus, which is slightly less than 0, will approach to minus infinity. But exactly 1 by 0 is not defined. It's neither infinity nor minus infinity. Everyone is clear? 1 by 0 is not defined? Yes, sir. सर वो जो fx का ग्राफ बनाया वहां पर वो 2 होगा ना? कहाँ पे 2 होगा? फिर लास्ट कोऑर्डिनेट. हाँ सर, ये 2 है, 1 है, 2 है. When fx is 0, so 1 by 0 is not defined. But when we consider 0 plus, so this number is slightly greater than 0. In that case, 1 by 0 plus will approach to infinity. So whenever we have 0 in fx and we need to take a reciprocal of it, we always draw a line parallel to y-axis, which is called as asymptote. Can anybody tell me what is asymptote? फिर जो मतलब टच कर रही होगी मगर उसको कब इंफिनिटी तक जाएगी. बोलो, दोबारा बोलो. फिर अप्रोच कर रही होगी इंफिनिटी तक जाएगी मगर कभी भी लाइन टच नहीं करेगी पॉइंट को. So asymptote actually means tangent at infinity. So that means it is tangent at infinity. But infinity तो कभी कोई डिफाइन वैल्यू है नहीं, तो वो infinity पे टच करेगा. मतलब बोलने का सेंस infinity पे टच करेगा, मतलब एक्चुअली में कभी भी टच नहीं करेगा. तो asymptote means tangent at infinity. तो जब मैं यहाँ पे 0 है, तो 1 by 0, तो यहाँ पे हम इसका asymptote ड्रॉ करेंगे, तो this is asymptote. Again this is 0 here, so we need to draw one asymptote at x is equals to 1, one asymptote at x is equals to 2, one asymptote at x is equal to -1, and one asymptote at x is equals to -2. Now, so when this number is slightly greater than 0, this value will approach to plus infinity. And when x is equal to 1 by 2, fx is 1. The reciprocal of 1 is still 1. So we will join this function like this. And here also, when x is slightly less than 1, 0.99, in that case, fx is taking value very close to 0. But it's small positive number, 0.00000001. Reciprocal of that is, again, tends to infinity. Everyone is clear with this portion, this graph? In 0 to 1, how we have drawn the graph of 1 by fx in 0 to 1? We need to take reciprocal of all these values. So when x is equal to 0, we don't have any value. 1 by 0 is not defined. But when x is 0 plus 0, in that case, the value of fx is also 0 plus 0.000001. Consider this point. So x is slightly greater than 0, corresponding y is also slightly greater than 0. In that case, this value is 0.000001, and reciprocal of that will tends to infinity. So this is going to tending to infinity. This value is tending to infinity. Now when x is equals to 1 by 2, the value of fx is 1. So when x is equals to 1 by 2, suppose I put x equals to 1 by 2 here, so f of 1 by 2, and f of 1 by 2 is 1, so y is 1. And here we have to, when I say x equals to 1 by 2, then I will get 1 by 1, f of 1 by 2. But 1 by 1 is still 1, then this value will still remain same. So at x is equals to 1 by 2, value is still 1. ये भी clear सब लोग को? Yes, sir. Okay. And when x is close to 1, तनु बोलो. सर ये एग्जांपल में से यहाँ पर 1 की जगह एक बार कोई और वैल्यू लेकर दिखा दो. अगर यहाँ पे सपोज 3 होता, then this value will be 1 by 3. ओके सर. अभी हमने यहाँ पे 1 था तो 1 ही रहने देते हैं.
And when x is very close to 1 but slightly less than 1, 0.9999, in that case function will also be very close to 0, 0.000001, and reciprocal of 0.001 tends to infinity. So here the value is tending to infinity. This is tending to infinity. सब लोग को ये फर्स्ट 0 to 1 में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है, क्लियर है? Yes, sir. Now in 1 to 2. So here when x is slightly greater than 1, value is 1.0001, then value of fx is slightly less than 0. It is minus 0.00001. So what should be the value of y in this case when value of fx is minus 0.001? So minus infinity. Minus infinity. So here the graph will start from minus infinity. And when x is equals to 3 by 2, the value is minus 1. This is minus 1. So reciprocal of minus 1 is? Minus 1. Minus 1. And when x is very close to 2 but less than 2 is 1.9999, then fx is slightly negative number, minus 0.000001, and reciprocal of that is minus infinity. तो हमने इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया. सेम अप्रोच यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में. तो इसमें कोई ना एग्जैक्टली रूल नहीं है कि ग्राफ कैसे, कोई जैसे f ऑफ माइनस एक्स, उसका एक रूल है कि उसका इसका इमेज ले लिया, ऐसा ड्रॉ कर लिया, उन सबके रूल है. इसमें हम हर पॉइंट का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, हर एक पॉइंट का रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल अब ऐसा नहीं कोई बोलेगा सर मैंने इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी करूंगा, एक करके फाइंड करूं, तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे यहां से आते. तो इवन 0 से 0.1 के बीच में इनफाइनाइट हर पॉइंट ऐसे लोगों तो सॉल्व नहीं होगा. हमें देखना होता है कि इसका ले लिया, फिर यहां पे ले लिया, इसका ले लिया. ऐसे नहीं हर पॉइंट को भी लेगा, मैं 0.1 पे भी लूंगा, 0.2 पे भी लूंगा, 0.3, ऐसा नहीं करना है. हमें कुछ कुछ पॉइंट लेके हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं. बट आइडिया वही है कि रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे x is equals to minus 1 by 2. Now 0 वाला अप्रोच कहाँ पे करेगा? This is slightly greater than 0, 0.001. It will approach to infinity. At x equals to minus 1 by 2, its value is 1. Reciprocal of 1 is 1. And when this is slightly greater than 0, 0.01, reciprocal is again infinity. And similarly, we'll draw in this region also. सब लोग ग्राफ समझ में आ गया? ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ठीक है. किसी को डाउट है कि सर कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन का रेसिप्रोकल कर्व कैसे हो गया? तो बहुत सिंपल रीजन है. सी सपोज fx ये फंक्शन है is equals to x, and if I take reciprocal of this function, so I will get a new function fx which is 1 by x. And what is the graph of fx equals to 1 by x? Is it rectangular hyperbola? Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. And it looks like this. So देखो fx is equal to x was just a straight line, but reciprocal of this function turns out to be a curve. So it's not just a straight line, it's a curve. तो मतलब ना अगर स्ट्रेट लाइन का भी हो तो रेसिप्रोकल कर्व आ सकता है. तो इसका नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Next is y is equals to fx is given. Y is equal to fx is given, and we need to draw y is equals to f of 1 by x. Now ये दोनों डिफरेंट है. और पहले हमने जो ड्रॉ किया था दैट इज 1 by fx, पूरे फंक्शन का रेसिप्रोकल किया है. नाउ ओनली x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 1 by x. तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. 1 minus 1 2, 3, 4, and so on. Similarly, in negative x-axis, we'll draw the function like this. Minus 2, ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं. Minus 2, minus 3, and minus 4. Okay. बस ये सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, ऐसे ना, ऐसे ये स्पाइक नहीं कहीं पे ड्रॉ किया है. 1, 2, 3, 4 like this. Similarly, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Now, to draw a graph of f of 1 by x, so whatever graph do we have in 0 to 1, now we need to draw the same graph in 1 to infinity. And whatever graph do we have in 1 to infinity, we have to draw the same graph in 0 to 1. That means 0 to 1, this graph we will draw in 1 to infinity,
and the graph which is there in 1 to infinity in this interval will draw in 0 to 1. Now, why is it so? कोई भी explain कर सकते हैं why all the graph in 0 to 1 has to be drawn in 1 to infinity and the graph in 1 to infinity has to be drawn in 0 to 1? Why कोई explain कर सकता है जल्दी से? Similarly, negative direction also, negative x-axis also. The graph in minus infinity to minus 1 will be drawn in minus 1 to 0 and 0 to minus 1 will be drawn in minus infinity to minus 1. वो इसलिए होगा, suppose when I substitute x is equal to 0 here, so this will take value f of 0. When I substitute x equal to 1, so it will take f of 1. That means 0, f of 0, 1, f of 1. Now what will happen when I substitute x is equal to 0 here? It will take f of 0. I am talking about 0 plus, slightly greater than 0. 1 by 0 plus, then f of Infinity. infinity. And when I substitute x is equal to 1, then f of 1. That means the region in 0 to 1, 0 to 1 open bracket, greater than 0 and 1. 0 to 1, this region will be drawn into 1 to infinity. And when I substitute x is equals to infinity here, then this will be 0. When I substitute x equals to infinity, 1 by infinity is 0. And when I substitute x equal to 1, so when we substitute x equals to infinity here, so it will take f of 0. It takes values in this interval only. So if we substitute any number between 1 to infinity, substitute any value here between 1 to infinity, it will take the value in 0 to 1. It will take values, all the values between 0 to 1, this function only. So suppose if I substitute x equal to 5, this will be f of 1 by 5. 1 by 5 is somewhere here. If I substitute x equal to 100, 1 by 100 is very close to 0, so it will be somewhere here. So when we substitute any number here between 1 to infinity, it will take all those values which of the original graph in 0 to 1. So this graph in 0 to 1. So everyone is clear, means why we have to we are changing. So this 0 to 1 will be changed into comes in this interval and 1 to infinity will come in this interval. ये सब लोग clear है? सर इसमें एक डाउट है सर, अगर 0 से 1/2 और 1/2 से 1 तक मिरर इमेज नहीं होती तो सर क्या तब भी ऐसे ही होता? बोलो 0 से 1/2 और 1/2 से 1 का मिरर इमेज ले। नहीं सर, आई वांट टू से कि अगर मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा हो कि जैसे यहाँ पर 0 से 1 जो इंटरवल है वो कर्व मतलब सेम है। सर मैं ड्रॉ करके बता दूं स्क्रीन पे? हाँ ड्रॉ करता हूँ। सर लाइक अगर हम ये स्ट्रेट लाइन माने सर, यहाँ पर 0.0, यहाँ पर 0.1, सर अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर ऐसे जा रहा है और यहाँ पर ऐसे एंड देन ऐसे, तो सर जो 1 से इन्फिनिटी में ड्रॉ होगा वो सर इस बस ऐसे करके सर ऐसे हो जाएगा, या फिर ये जो कर्व साइड है वो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा? ये तो तुम्हारा डाउट है कि इसमें जो कुछ कहीं पे शार्प एज कुछ ऐसा आ रहा होगा तो वो किस साइड आएगा? तो देखो ये वाला पोर्शन तो तुम्हारा ये तो ओरिजिनल ग्राफ है यहाँ पे ना। अब जो सपोज दिस इज y is equals to f of x. Now when we draw y is equals to f of 1 by x, this is 1 and infinity. तो जो ये 1 वाला है, 1 का जब यहाँ पुट करेंगे ना, x is equal to 1, तो स्टिल इट विल टेक f of 1 ओनली. तो ये वाली वैल्यू तो 0 वाले का सेम यहीं पे रहेगा. जो ये 0 है, 0 प्लस 0 से स्लाइटली बड़ा हमने इस साइड 0 प्लस, देन इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे. तो ये पॉजिटिव है, इस रीजन में ग्राफ पॉजिटिव तो रहेगा ही और ये 0 को अप्रोच करेगा. ये सब आ गया, तो ऐसे जा रहा है. देन v और इस तरीके से वो फिर 0 को अप्रोच करने लगेगा और इन्फिनिटी पे जाके ये 0 हो जाएगा. सर माय डाउट इज कि जो बीच में शार्प एज बनाया है वो मैंने स्लाइटली लेफ्ट की तरफ बनाया है, तो सर हमने जो 1 टू इन्फिनिटी बनाया है तो उसमें सर वो जो शार्प एज है वो स्लाइटली राइट हो जाएगा ना? स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट में समझा नहीं मैं. सर मैंने जो शार्प एज बनाया वो मैंने मिडल में नहीं बनाया. ये शार्प एज अगर तुमने कहीं पे भी बनाया है वो ऑलवेज 1 के क्लोज ही दिखेगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है. सपोज एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये 1 है, फिर यहाँ पे सपोज 1/2 होगा, फिर सपोज तुमने यहाँ पे कहीं पे 1/3 के अराउंड, सपोज 1/3 1/4 के अराउंड बना दिया तुमने शार्प एज. तो 1/4 का भी अगर मैं ये x = 1/4 है, यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे तो f ऑफ क्या बन जाएगा? ये f ऑफ 4. तो ये 4 के अराउंड यहाँ पे इसको ये दिख जाएगा हमें. बट इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है. कोई बोलेगा सर मैंने और बहुत क्लोज मैंने यहाँ पे बना दिया, तो मैं बोलूँगा ठीक कितना नंबर है? तो वो बोलेगा सर मैं ये 1/100 है. तो ठीक है, तो 100 पे जाके बनेगा. बट जब ग्राफ को एक्सपैंड करेंगे 100 और इन्फिनिटी तो मतलब 10,000 10 करोड़ से भी बहुत बड़ा नंबर है, तो भी वो ऑलवेज ना वो फिर 1 के क्लोज ही दिखेगा. इन्फिनिटी के क्लोज कैसे दिख सकता है कोई भी चीज? इन्फिनिटी तो इतना बड़ा नंबर है, उसे क्लोज दिखेगा ही नहीं कभी. अब कितना भी यहाँ पे भी जाके बना दो, शार्प एज बना दो, वो ऑलवेज 1 के क्लोज दिखेगा कंपेयर टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के क्लोज कभी कोई नंबर नहीं दिखता, कोई चीज नहीं दिखता हमें. ओके सर, अब आगे सर. So f of 1 by x, अब हमें ड्रॉ करना है f of 1 by x. Now f of 1 by x में ना जो इसका जो ग्राफ है between 0 to 1, now we need to draw this in 1 to infinity, and the graph which is there in 1 to infinity we will draw in 0 to 1. तो अब इसमें देखो 0 to 1, तो 1 वाला जो ये पॉइंट है 0, तो यहाँ पे 0 रहेगा, और जो यहाँ से 0 पे जा रहा है, और दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू और ये स्लोली फिर 0 को अप्रोच करने लग जाएगा.
ये सब लोग समझ में आ गया पहले 1 टू इन्फिनिटी कैसे ड्रॉ किया हमने। एंड जो इसका 1 से इन्फिनिटी है वो पहले नेगेटिव पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को चेंज नहीं करता है, क्योंकि हमने x को फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं की है, x अंदर 1/x हो गया, फंक्शन की वैल्यू वही है, मैक्सिमम वैल्यू स्टिल रिमेंस 1 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -1, ये मैक्सिमम मिनिमम सेम रहेगा। दिस इज आल्सो -1। तो अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर जो हमारी 1 to 4 तक की जो कर्व है वही सेम कर्व एज इट इज बना देंगे। 1 टू 4 वाली जो है वो फिर एज इट इज बनानी है 0 to 1 के बीच में। देखो, जो इसमें इसके बाद क्या होगा ना, जो इसका चलो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कि एग्जैक्टली स्टेप वाइज कैसे होगा। जो ये 2 वाला पॉइंट है, व्हेन x को यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा 1/2। तो जो 1 से 2 का जो ग्राफ है ये इसमें बन गया 1/2। 1/2 तो एग्जैक्टली हाफ होगा, 1 का हाफ है, यहाँ पे 1 है 0, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट हो गया 1/2, और यहाँ पे हमने ऐसा इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। जो 3 वाला पॉइंट है वो 1/3 होगा, तो 1/3 ना 0.3 1/2 के बहुत थोड़ा क्लोज ही आएगा, यहाँ पे जाएंगे 1/3 है, और ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, तो ये बहुत ही ऐसा पतला सा सेट रहेगा, बहुत ही पतला होगा, ठीक है। देन 4 वाला हो जाएगा 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये बहुत और पतला हो जाएगा फिर से। फिर और करेंगे ना, कोई बोलेगा सर मैं 4 to 5 करूंगा तो 1/4 और पतला हो जाएगा, बहुत पतला सा बनेगा, ऐसे करते 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 बनते जाएगा। सब लोग को समझ में आया कैसे ड्रॉ किया हमने ये? यस सर। यस सर। सेम ऐसे ही हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी ड्रॉ करेंगे इसको। तो -1 to 0 है जो है वो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से नेगेटिव जाएगा। इसके बीच में भी फिर ऐसे ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। The next is y is equals to 1 by x minus 1. You need to draw the graph of y is equal to 1 by x minus 1. सब लोग ड्रॉ करके जल्दी से मुझे कैसे शो करोगे मुझे? मुझे व्हाट्सएप पे ना मुझे सेपरेटली मुझे अपने ना ग्राफ करके भेजो। अपने जैसे ही ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसको स्नैपशॉट लो और व्हाट्सएप पे मुझे सेपरेट भेजो, ग्रुप पे नहीं। किसी का ड्रॉ हुआ है? किसी ने भेजा नहीं मुझे अब तक। See, this graph is very simple. So first we need to draw the graph of y is equal to 1 by x, and we have already learned this is a rectangular hyperbola, and the graph looks like this. Everyone is clear with rectangular hyperbola, graph of rectangular hyperbola? Simple rectangle. This is y is equal to 1 by x. Now the graph, when we replace x by x minus 1, that means graph will shift towards positive direction of x-axis or negative direction of x-axis? Positive direction. Positive direction. So now same, the graph will remain same, or we can simply change here also. So this, the point is, which was earlier 0 will be now 1. So because -1 means we need to add 1 here. This is now 1, 0. If this is 1, 0, so origin 0, 0 will be somewhere here. That's all. This is our graph. तो इसमें मैं ऐसे नहीं बना सकती कि स्टार्टिंग में y इक्वल टू x माइनस 1 बना लिया और फिर उसको 1 बाय fx। पहले y इक्वल टू x माइनस 1 बना के फिर उसका रेसिप्रोकल, वो भी कर सकते हैं। और देखो बहुत सारे मेथड हैं कि पहले y इक्वल टू x माइनस 1 करके फिर हर ग्राफ के पॉइंट पर ग्राफ के पॉइंट का रेसिप्रोकल करना उतना इजी नहीं है कंपेयर टू शिफ्ट करना। शिफ्ट करना देखो बहुत इजी होता है कि पहले y इक्वल टू 1 बाय x कर दो और हर पॉइंट पे 1 1 1 ऐड कर दो। ये मुझे रिलेटिवली शिफ्टिंग ज्यादा इजी लगता है कंपेयर टू हर पॉइंट का रेसिप्रोकल। मुझे हर एक पॉइंट का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, हर पॉइंट पे जाना है। इसमें क्या है मतलब कि बस सिंपली पॉइंट सब जगह x एक्सिस वाले पॉइंट पे 1 1 ऐड करते गए, तो शिफ्टिंग ज्यादा इजी होता है। वैसे ऐसा नहीं कि उससे ड्रॉ नहीं हो, उससे भी ड्रॉ हो जाएगा, जिससे इजी हो उससे आप यूज कर लो।
ये सब लोग समझ में आ गया, y इक्वल टू 1 by x minus 1. Yes, sir. Then draw the graph of y is equals to 1 by x plus 2. ये भी ड्रॉ कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन है सबको भी. और ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, y is equal to 1 by x plus 2. हाँ श्रेय, तुमने भेजा तो है, बट ना इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो तो ज्यादा बेटर है ना, बहुत क्लियर नहीं है. तुम्हें -2 पे से लग रहा है कि ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, -2 पे तो कोई ग्राफ होना नहीं चाहिए. ऐसा लग रहा है कि x को -2 पे तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड है, -2 पे वैल्यू आ रही है. श्रेय, ओके सर. पहले ना -2 पे तो कोई फंक्शन होने, -2 पे तो इसको वैल्यू नहीं, कोई अगर मैं पूछूंगा x को -2 पे y की वैल्यू क्या होगी? यस सर. फिर भी मेरा क्वेश्चन है, व्हेन x इक्वल टू -2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. तो x को -2 पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो थोड़ा सा ना, उससे थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है. टेक्निकल से जितने लोगों ने भेजा है सबका सही है. तो कितने लोग भेज दिया? 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने भेजा मुझे. इस बैच में कितने स्टूडेंट हैं? सर 8 है. तो मुझे सिर्फ 6 लोगों ने भेजा है. 1 2 3 4 5 6. 2 लोगों ने नहीं भेजा अभी. किसने नहीं भेजा अभी? सर शांतनु. डाउट है तुम्हें शांतनु? यस सर. अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखो. तो सबसे पहले ना हमें जब भी ऐसा फंक्शन हो तो देखना कि ये जो बेसिक फंक्शन x प्लस तो शिफ्टिंग के बाद हुआ है, तो जो बेसिक फंक्शन जो रहा होगा दैट वाज एक्चुअली 1 by x, y is equal to 1 by x. So this is the our basic function, and if we shift towards positive direction of x-axis then we'll get x plus 2. So negative direction plus 2 है तो negative direction में हमने शिफ्ट किया इसको. plus 2 है तो -2 करना है एक्चुअली negative direction में, और -2 है तो positive direction में. तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो y is equal to 1 by x का, एंड इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसे ले लेते हो. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो अब इसमें ना ये देखो x = 0 पे नॉट डिफाइंड था, तो इसका एसिम्पटोट 0 पे था, x = 0 पे. अब ये कहां पे शिफ्ट हो गया? ये x की कौन सी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होगा शांतनु? ये x = 0 पे नॉट डिफाइंड है कि 0 होगा तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड. ये x की कौन सी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होगा? सर 0. देखो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर x की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? किसी भी फंक्शन जब डिनोमिनेटर 0 होता है ना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो इसका डिनोमिनेटर कब 0 होगा? सर जब x -2. -2 पे होगा. तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमें -2 बनाना है, तो हम सिंपली 0 को लिख देंगे अब -2, 0. उसका चलिए तो -2, 0. बट अगर ये -2 है तो 0, 0 -2 के आगे होगा या -2 के पीछे होगा? सर आगे होगा. आगे होगा. तो यहाँ पे कहीं पे 0, 0 मार्क कर लो ऐसे. तो दिस इज 0, 0. और इस लाइन को डॉटेड लाइन बना दो फिर, क्योंकि ये y एक्सिस नहीं है तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना दो. ये ग्राफ हो जाएगा इसका. ये क्लियर है ग्राफ? यस सर. सिर्फ शिफ्टिंग करना है. ये सारे ना जो शिफ्टिंग वाले, तो पहले ओरिजिनल ग्राफ आइडेंटिफाई करो और उसको शिफ्ट कर दो. y is equals to x minus 1 divided by x minus 2. First we'll mark the points at which function is 0. So at what value of x the function is 0? सर +1. +1. And at what value of x the function is not defined? +2. So तो ये पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन 0 है और फंक्शन नॉट डिफाइंड. जहां पे नॉट डिफाइंड है वहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? एसिम्पटोट.
ठीक है, तो पहले हमने मार्क कर लिया कि फंक्शन x = 1 पे 0 है, तो इस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा फंक्शन, ठीक है, इस पॉइंट से पास करके जाएगा। इस और 2x = 2 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो x = 2 पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बट एसिम्पटोट होगा। तो जब एसिम्पटोट होता है ना, तो फंक्शन इसके आसपास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ही वैल्यू लेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड एट x = इन्फिनिटी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो वो फाइंड करने के लिए ना पहले इसको पहले x से डिवाइड कर लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। Now when x tends to infinity, 1 by x tends to, when x tends to infinity, 1 by x tends to 0. 0. 0. 2 by x tends to 0. So when x tends to infinity, the y will be equals to 1. 1. And when x tends to minus infinity also, then y tends to 1, because 1 by infinity 0, 1 by minus infinity 0, तो दोनों ही केस में 0 होगा। तो x की वैल्यू infinity हो या minus infinity हो, y की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ऐसे भी बना लेते हैं, this is also our asymptote, and this is 0, 1। अब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हमने ना जो कुछ क्रूशियल पॉइंट्स थे, कुछ वो सारे हमने मार्क कर लिए, और अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। कई बार ग्राफ ड्रॉ करने में किसी को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो और ऐसे नंबर लाइन में मार्क कर दो, x = 1, x = 2, 2 से बड़ा नंबर लेंगे 100, तो दिस इज पॉजिटिव, wavy curve is applicable, so this is negative and positive. That means graph should be positive in 2 to infinity and minus infinity to 1, and it should be negative in 1 to 2. इस इंटरवल में ग्राफ नेगेटिव होगा और इन दोनों इंटरवल में ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। So it should be positive in 2 to infinity. Now when x tends to infinity, so this is infinity, so y tends to 1, so this is value is 1, so graph tends to 1. So it can be slightly greater than 1 or it can be slightly less than 1. But when x approaches to 2, this function is not defined. So now it has two options. It can take value infinity or minus infinity. But in this interval, it is positive. So where should it start? It should start from plus infinity or it should start from minus infinity. In 2 to infinity, it is positive. So it should start from negative infinity or positive infinity? So positive infinity. Positive infinity, because it is positive in this interval. So it will start from plus infinity. And since when x is infinity, y approaches to 1. So we will join this graph like this. Okay, so this will approach to 1. Now, when x is slightly less than 2, so in this region 1 to 2, the function is positive or negative? Negative. Negative. And at x = 2, it has only two options. It can take plus infinity or minus infinity. So what value it should take? It should take minus infinity or plus infinity? Minus. Because it is negative, that's why it will take minus infinity. And x = 1, it is 0. So now we'll join this point also. And when x is minus infinity, y tends to 1. So it will go and approach to 1. सब लोग ग्राफ समझ में आए कैसे ड्रॉ किया हमने? नोट कर लिया सबने ग्राफ? से पता चलता है कि 1 से 0 के बीच में इसका स्लोप यही आएगा। ठीक है, फिर से बोलो, समझ नहीं मुझे। तो 1 से 0 के बीच में इसका स्लोप यही आएगा, ये कैसे पता चलता है? 1 से 0 के बीच में, यानी 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में इसका स्लोप यही आएगा। नहीं सर मतलब ये हमें एक पॉइंट तो पता नहीं, ये कैसे पता बीच में कैसे होगा ये ग्राफ? ये तो कर्व है ना, स्लोप ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। ये सर मतलब ये जो कर्व है ये इनवर्ट होगा आउटवर्ट होगा, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, कर्व का कर्वेचर कैसे होगा? ओके, तो अब जैसे ना इसके लिए भी एक मेथड है वैसे, तो मैं वो मेथड मैथमेटिकली बता दूं या वैसे हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में करते हैं। तो किसी कर्व का कर्वेचर किसी इंटरवल में फाइंड करना है, कहीं पे भी फाइंड करना है, तो हम कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव होता है। बट अभी जैसे ये थोड़ा सा ना ये ऑब्वियस जैसे भी था ना, लॉजिकल था कि ग्राफ यहाँ से लेके ऐसे जाके ऐसा आ रहा है, तो मतलब मैं फिर बट ऑब्वियसली मुझे कर्वेचर ऐसे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे ऐसे जाना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे ही तो ऑब्वियसली इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। कभी-कभी मुझे भी कंफ्यूजन होता है कहीं कर्व के कर्वेचर पे, तो फिर मैं मेथड है मैं बता देता हूं कि कैसे चेक करते हैं। वैसे इसमें तो ऑब्वियसली लग ही रहा है ना कि कर्वेचर ऐसा ही होगा। यस सर, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये हाफ होगा ना? कौन सा बीच वाला पॉइंट? ये वाला? यस सर। तो मैं x = 0 पुट कर लो, x = 0 पे y की वैल्यू 1/2 ये होगा। सर फिर इसमें तो हम अगर कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो अपने आप नहीं पता चल जाएगा। कुछ पॉइंट देखेंगे तो मतलब समझ नहीं आया, फिर से बोलो। सर जैसे x y के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, फिर उनको जॉइन कर ले, तो फिर कुछ पॉइंट्स से उसका कर्वेचर तो पता चल जाएगा ना? अच्छा, मतलब कर्वेचर निकालने का दूसरा मेथड भी मैं वो बता ही देता हूं अभी। तो देखो, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं कुछ उसको। तो किसी भी कर्व का कर्वेचर पहले लेते हैं। चल नहीं रहा अच्छा। कर्वेचर ऑफ अ कर्व, ठीक है। नाउ कर्वेचर का एक्चुअली जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, so if I look carefully this function over a to, suppose this point is b and b to c,
Now in A to B, if I look carefully, this function looks like concave downwards or convex upwards. Means if I look in this direction, it is convex, and if I look from this direction, it is concave. So I will call it as either concave downwards or convex upwards. So this graph is called as, this region is called as concave downwards or convex upwards. Convex upwards. ठीक है. And similarly this इसको क्या बोलेंगे, कुछ जल्दी से बता सकते हैं? About if we talk about the curvature of this graph, so what we call it as concave upwards, convex downwards. कॉन्केव अपवर्ड्स और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स. ठीक. तो अब हमें चेक करना है कि किसी भी कर्व का, ये तो जैसे कर्वेचर हमें कर्व गिवन है, हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो हम बोल देंगे, बट अब मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी कर्व को कर्वेचर, हमें फंक्शन गिवन है, कर्व गिवन तो बहुत कोई भी इजीली कोई भी बता देगा, देखिए कि ये तो सर कॉन्केव डाउनवर्ड है या कॉन्केव अपवर्ड है, बट फंक्शन गिवन है तो हम फंक्शन से कैसे फाइंड करेंगे. तो अब इन्हीं दोनों फंक्शन को हम केयरफुली दोबारा ऑब्जर्व करते हैं. सब लोगों को पता है dy by dx इज रेट ऑफ चेंज, dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. Yes sir. ध्यान पड़ा ना. सो अब इस वाले फंक्शन को देखो, तो यहाँ पे इसका dy by dx क्या होगा, इस रीजन का dy by dx क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव. अच्छा, अब जो ये जो लाइन है इसका dy by dx होता है 0, फिर इसका dy by dx स्लाइटली पॉजिटिव, ये dy by dx बढ़ गया, स्लोप बढ़ गया ना, हमें बहुत ऊपर चढ़ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्लोप बढ़ रहा है, तो dy by dx किसका बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और dy by dx बड़ा हो गया, और dy by dx बड़ा हो गया, और dy by dx, और एग्जैक्टली dy by dx नॉट डिफाइंड हो गया. व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस देन dy by dx इज नॉट डिफाइंड. तो dy by dx यहां से इस डायरेक्शन में कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. फिर इस वाले का dy by dx क्या होगा, बहुत नेगेटिव नंबर है, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, जैसे -100 है, बहुत बड़ा नेगेटिव है. फिर dy by dx इंक्रीज अभी भी स्टिल इंक्रीज ही हो रहा है, -100 से -10 हो गया, -1 हो गया, -0.5 हो गया, एंड वापस से 0 हो गया dy by dx. तो dy by dx इस डायरेक्शन में कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेके बहुत बड़ा नंबर, और सडनली बहुत बड़ा नंबर से नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, और फिर से इंक्रीज ही कर रहा है. तो सब लोगों को पहले dy by dx क्लियर है, किसका स्लोप बड़ा होता है. तो अब मैं इस वाले पॉइंट का देख रहा हूं तो स्लोप बहुत बड़ा है, फिर स्लोप कम होते जा रहा है, dy by dx कम हो रहा है, dy by dx कम हो रहा है. इस वाले पॉइंट का dy by dx कितना होगा, 0. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा का dy by dx 0 होता है. तो यहाँ पे dy by dx 0 हो गया, फिर dy by dx डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो गया, और बहुत बड़ा नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे dy by dx बहुत बड़ा नेगेटिव. इस पूरे रीजन में dy by dx बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर से बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर हुआ, तो dy by dx कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सर डिक्रीज. हमने इस वाले को लिख दिया dy by dx is decreasing. सर हाँ, सर इसमें अगर हम कर्व की जगह स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे और उसका एक जो पॉइंट होगा मैक्सिमम और मिनिमम, सर उस पे भी हम dy by dx इक्वल टू 0 बोलेंगे. स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे होगा, सर इसको अगर हम अब दूसरी तरफ ले जाएं तो ऐसा शार्प कर्व की तरफ. यस सर. शार्प एज बना देना, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा इसका. बट इस केस में ना देखो, मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा हम डिफरेंशिएट करके फाइंड कर पाते हैं, कुछ डिफरेंशिएट करके फाइंड नहीं कर पाते, तो इसका ये डिफरेंशिएट करके नहीं निकलेगा, बट हम देख के बता देंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, तो ये डिफरेंशिएट करके नहीं आएगा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है. शार्प एज आने पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है. वो चलो वो केस ना एक चैप्टर आएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना, उसमें मैं थोड़ा ढंग से बताऊंगा. ये भी एक्चुअली कर्वेचर भी ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, तो किसी को कहीं के बीच में थोड़ा डाउट हो जाता है, बट इसके सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो सारा एक साथ करने पे फिर ना हौच पौच जाएगा. तो पहले ये चलो मैं बताया तो यहाँ तो ये सब पहले क्लियर, सब लोगों को dy by dx डिक्रीजिंग होगा. Yes sir. यस सर. और ये जो b से c का जो इंटरवल है, इस पहले b वाले पॉइंट पे देखो तो इसका जो dy by dx है वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, फिर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, कम नेगेटिव कन्वर्ट, यहाँ पे 0 हो गया dy by dx, फिर थोड़ा पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे dy by dx बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया. इस पूरे रीजन में dy by dx क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, Increase. Increase. इंक्रीज हो रहा है. तो इस वाली रेड वाले जो रीजन है, इस वाले रीजन में dy by dx कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. dy by dx इज इंक्रीजिंग. अब हम फाइंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव एग्जैक्टली हमें बताएगा कि कर्व का कर्वेचर कैसा है. अब देखो सपोज किसी का dy by, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ dy by dx, एक फंक्शन है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं dy by dx का, तो dy by dx अगर उसका dy by dx यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा था, तो a से लेके b तक उसका dy by dx क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो a से b तक उसका dy by dx डिक्रीज किया है, और b से लेके c तक उसका dy by dx इंक्रीज कर रहा है. जो फंक्शन का dy by dx डिक्रीज कर रहा है, इसके टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव. Negative. और इसके टेंजेंट का स्लोप, मतलब किसी के भी टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसका टेंजेंट का स्लोप मुझे क्या देगा, क्या कैसे निकालूंगा टेंजेंट का स्लोप, तो क्या हो जाएगा वो सेकंड डेरिवेटिव. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा d² y by dx²
विल बी नेगेटिव। Yes. और इसके टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं इसका इस वाले पोर्शन जो रेड वाले पोर्शन का d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज पॉजिटिव। सब लोग ये भी क्लियर है? और ये एग्जैक्ट हमें बताएगा कि कोई भी कर्व का कर्वेचर क्या है। हम देख लेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, ओके, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, उसको बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड। तो अब जैसे किसी को इसमें डाउट, जैसे ये डाउट हो रहा है कि सर कि इस रीजन में क्या हो रहा है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करो। पहले y डैश फाइंड करो, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो y डबल डैश, और किसी इस बीच में डाउट हो रहा है तो इस बीच में कोई भी नंबर पुट करके देख लो। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो हम बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो कॉनकेव डाउनवर्ड। ये क्लियर है? यस सर। y is equals to x plus 2 draw the graph of the function. ये हो गया ड्रॉ किसी का? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जिसका हो गया ना ग्रुप पे भेज दो मुझे, सब लोग ना ग्रुप पे भेजो, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल में बहुत सारे आ जा रहे हैं। ग्रुप पे भेज दो, मैथ्स वाला जो ग्रुप है ना उस पे भेजना। कितने लोग भेजे? सबका सही है। कोई इसको थोड़ा डाउट हो रहा है ड्रॉ करने में? सब लोग को हो गया ड्रॉ, या किसी को थोड़ा सा डाउट है कैसे ड्रॉ करना है? तो मैं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि सिर्फ 4 लोगों ने भेजा अभी तक। श्रेय, तुमने पॉइंट मार्क नहीं किया है। जो कट कर रहा है जो ग्राफ ना एक्स एक्सिस को, वो कौन सा पॉइंट है? तुमने वाई एक्सिस पे कट करा है क्या श्रेय? Yes, sir. जो तुमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी ओरिजिन पे कट कर रहा है? थोड़ी सा गलत हो गया, दोबारा पूछो। नहीं, बाकी तो सही था, थोड़ा सा एक बार देख लो। यावी, तुमने जो ड्रॉ किया है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, या जो जो दूसरा लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है क्या? वो एसिम्प्टोट कट कर रहे हैं या कहाँ पे जा रहा है? नहीं सर, स्ट्रेट लाइन है वो, मतलब वो ऐसे बन गई, वो थोड़ी लाइक कर्व्ड ही है वो। हाँ। वो ऐसे वो डॉटेड लाइन को कट नहीं करेगा ना? ऐसे लग रहा है डॉटेड लाइन को कट कर रहा है वो। नो नो सर, वो ऐसे बन गई बस, चल गई। ठीक है, फिर सही है। और शांतनु, तुम्हारा जो दूसरा जो कर्व है वो y एक्सिस पे जा रहा है, माइनस इनफिनिटी। x इक्वल टू
देखो मैं फिर मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पॉइंट। कई बार क्या है कि कोई बच्चा एक्स 1 पुट करने बैठ जाता है, 2 पुट करेगा, 3 4 5 6 7 800 सारे पॉइंट पुट करोगे तो फिर तो ड्रॉ ही नहीं होगा। तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हमें मतलब मार्क करने से हमें ग्राफ जल्दी से पहुंच जाएगा, हम उन पॉइंट को एक्सेस ड्रॉ कर लो, एक्सेस ड्रॉ कर लिया। तो x इज इक्वल टू -2 पे y 0 है, तो पॉइंट पहले मार्क करो -2, 0। फिर x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है मींस एसिम्पटोट बनेगा, तो x को एक पॉइंट मार्क कर लो 3, 0। एसिम्पटोट है तो वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया हमने, तो 1 + 2 and 1 - 3/x. x tending to infinity, y tends to 1. When x tends to -infinity, y tends to 1. तो हम एक डॉटेड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, y = 1 ऐसा। दिस इज y = 1। थोड़ा सा किसी किसी को डाउट होता है तो ना एक ऐसे वे भी कभी ड्रॉ कर लो, -2 3 से बड़ा नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये फंक्शन बोल रहे हैं कि -infinity से -2 एंड 3 to infinity पॉजिटिव होगा और -2 to 3 नेगेटिव रहेगा। तो 3 की इसकी वैल्यू है, इसका दो ही ऑप्शन है, एसिम्पटोट है तो या तो +∞ जाएगा या -∞ जाएगा, दो ही वैल्यू ले सकता है। इस वाले रीजन में लेंगे 3 to infinity वाले में, तो इसको पॉजिटिव रहना है, तो ये वैल्यू लेगा +∞, तो +∞ से स्टार्ट किया। इंफिनिटी पे y की वैल्यू 1 अप्रोच करेगी तो यहाँ पे 1 पे जाना है, तो नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही जाएगा, देख के लग रहा है, तो हमने इसको ऊपर लेके ऐसा इस तरीके से ज्वाइन। तो इस तरीके से एंड जब 3 से हम थोड़ा छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए -∞ लेगा, -∞ वाले पॉइंट पे मार्क कर दिया और यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा। फिर इसको 0 होगा और फिर x टेंड्स टू -∞ पे वापस से 1 चले जाएगा। तो ये ये सब लोग को समझ में आ गया ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? Yes. y is equals to -1 x - 3 x - 3 इसे ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम अप्रोच है। सबसे पहले हम y ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया। अब हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 एंड 2 पे 0 हो रहा है, 3 एंड 4 पे इसका एसिम्पटोट है, तो एसिम्पटोट के लिए हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 1 अप्रोच करेगा। ये सब लोग क्लियर है? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y इक्वल टू 1 होगा, या फिर न्यूमरेटर को x² से डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर भी x² से डिवाइड करो। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y इक्वल टू 1 है, तो हम एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से।
एक वेवी कर्व अलग से ड्रॉ कर लो, इसकी थोड़ा कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। 1 2 3 4, 4 से बड़ा लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये बोल रहे 4 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव है, इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव है, तो x = 4 पे या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, 4 पे जाएगा 1, तो इसको हम यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर लिया। फिर x = 3 to 4 ये नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी, और x = 3 पे भी जाएगा, एसिम्पटोट है नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, और इस तरीके से इसको ज्वाइन करा दिया। ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस को जो कट करने वाले पॉइंट है वो सिर्फ 1 एंड 2 है। y की वैल्यू 0, x की कौन सी वैल्यू पे होगी, तो ओनली 1 एंड 2। तो ये ग्राफ हम इसको इस तरीके से बस ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये बहुत ऊपर लेके नहीं आना, किसने बोला कि सर यहाँ पे था, मैंने बहुत ऊपर से ऐसे ऊंचा ड्रॉ कर दिया। ज्यादा ऊंचा हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सर जो 3 और 4 के बीच में ग्राफ है सर, उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमें कैसे पता चलेगा? वो इसलिए फिर dy by dx निकालना होगा, इसका पॉइंट ऑफ कि x किस वैल्यू पे आ रहा है, डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। हम अभी ना रफ स्केच कर रहे हैं, अगर मान लो कभी-कभी एग्जाम में उसकी जरूरत पड़ जाती है, तो हम फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका। ओके सर। 3 से स्लाइटली यहाँ पे कम लेंगे तो इसकी वैल्यू फिर से पॉजिटिव जाएगी, तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। 2 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ से ये 0 को ज्वाइन कर देंगे, और 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो इस तरीके से नेगेटिव हो गया, और फिर 1 से छोटा लेंगे तो फिर पॉजिटिव है, और ये इन्फिनिटी पे जाके 1 अप्रोच कर जाएगा। ऐसा सब लोग ग्राफ समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया है? यस सर। नोट भी कर लिया सबने? यस सर। इसको ड्रॉ करो। इसको भेज, जिसका हो गया उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो ग्रुप पे। सही है। जितने लोग ने भेजे सबका सही है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम वही रूल अप्रोच लगाने में सबसे पहले क्या करो, सारे पॉइंट्स मार्क करो। कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करने हैं? जिन पॉइंट्स पे फंक्शन 0 हो रहा है पहले उनको मार्क कर लो, x = 1 and 3, और जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वो भी मार्क करना है, तो 2 and 4, तो 1 2 3 4 सब पहले मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 and 4। x = 1 and 3 पे 0 हो रहा है, तो 1 पे 0 होगा तो इससे पास करके जाएगा, 3 पे 0 होगा तो भी इससे पास करेगा, एंड 2 and 4 पे एसिम्पटोट है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे।
2 and 4. टू एंड 4 पे सिम ड्रॉ कर दिया। x सिम टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही है, तो एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। और 4 से बड़ा नंबर लेंगे पॉजिटिव, तो x का जहाँ पे एसिम्प्टोट है उसमें दो ऑप्शन है, तो प्लस इन्फिनिटी लेगा या माइनस इन्फिनिटी लेगा। तो इस रीजन में पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जाके 1 अप्रोच कर रहा है, तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया। एंड फिर 3 to 4 में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस इन्फिनिटी, 3 पे 0 रहे तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। 2 to 3 में पॉजिटिव है, 2 पे फिर प्लस इन्फिनिटी लेगा, इसको भी ज्वाइन कर लिया। 1 to 2 में फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 1 पे 0 है,